Hello student, I am your physics mentor Nitesh Kumar and you are watching Drona Academy e-learning series. Today I am going to start the 12th class first lecture. Okay, before starting the 12th class first lecture, what you have to revise from the 11th class? First vector, second calculus, third basic mechanics. Basic mechanics means kinematics, Newton's law of motion and work of energy. This is the three basic chapter you have to revise at least. पूरा रिवाइज कर लो, बहुत अच्छी बात है. और ट्रिगोनोमेट्री एंड बेसिक अलजेब्रा you have to revise these topics. Again I am repeating vector, calculus, basic mechanics, trigonometry and basic algebra. You have to revise these 5 topics, then only you can understand the electromagnetism. Okay, this is our first unit of 12th class. Okay students, what is electromagnetism? It is a science of the combination of, it is a science of combination of the electrical and magnetism. It is a science of the combination of what? अरे यार क्या लिखा, हाँ सही से लिखते हैं, ठीक है. It's a science of the combination of electrical plus magnetism. Concertism, magnetism. Okay, a very interesting topic students. Okay, and very scoring also. And here you will get the varieties of questions also. Okay, that's why this is also called the one of the toughest part or toughest unit of physics. But students, are very interesting if you will revise vector and calculus especially. Okay, we are dividing the electromagnetism in 2 parts. This is my favorite part, okay, of whole physics, electromagnetism. Okay, electrostatics and electrodynamics. Electrodynamics. Now what is electrostatics? नाम से ही पता चल रहा है students. It deals with the study of charge at rest. So it deals with the study of charge at rest. So in this part, charge is at rest. सो रहा है charge. And here electrodynamics. In this part, charge is moving. Charge is moving. Okay, student. Now look at this. In this full unit, what we have to study? Actually, we have to play with the charge. Look at this. In electrostatics also, we'll discuss about the charge is at rest, and here we are going to discuss about the charge is moving. Okay, so it means we have to discuss charge, or it means we have to play with the charge in this full unit. सबसे ज़्यादा लेंदी यूनिट भी यही है आफ्टर मैकेनिक्स. हाँ, बहुत स्कोरिंग है, सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, not very simple but very interesting students. Why I am telling it's not very simple? Because this is not very simple for the students, those who don't having a maths. Okay, because here we are going to use the full vector, calculus, basics, mechanics parts. Okay, so that's why the students, those who don't having a maths, for that students this topic is little bit difficult. But trust me students, if you will revise that things whatever I told you, surely you will find this is the most interesting and most scoring to है ना. Okay, so first I am going to start with the charge. Charge बहुत important part है ना student. What is charge? Basic. What is charge? It is a property associated with matter. What is charge? It is a property associated with matter due to which it experiences electric and magnetic effects. Again I am repeating students, what is charge? Charge is a property associated with matter due to which it experiences electric and magnetic effects. Okay students, now what is the unit of charge? Coulomb. You all know these things from 10th class.
charge we having in 10th class also, is it or not? So from 10th class you know that what is charge, what is the SI unit of charge, there are two type of charge, what is the basics property of charge, these things already in 10th class. Okay, but here again I am going to revise that things, then after we'll start, because this is the basic unit, and without understanding the full concepts of charge, what is charge, what is the meaning of charge, what are the properties of charge, you can't understand the electrostatics. अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आपका ही लॉस है ना. So that's why I am starting. कुछ बच्चे तो भूल भी गए सर 10th किसको याद रहता है ना. So that's why I am starting with the charge. Now you understand the definition. If you want to write, again I am repeating, what is charge? It is a property associated with the matter due to which it experience and produce electric and magnetic effects. Okay, वही तो पढ़ने वाले हम लोग, electric and magnetic effects. What is electromagnetism? It's a combination of science of electrical and magnetism. Okay, so what is the SI unit of charge? Note down, coulomb. और उसको डिनोट किस चीज से करते हैं? C, है ना. Okay, and now there is a two types of charge. We are dividing charge in two part. First one is positive charge and second one is negative charge. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कितनी बार पढ़ाओगे, बोर हो रहा हूँ मैं. ठीक है, इट्स ओके, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ. मुझे पता है कि आप लोग बोर हो, जब भी सिंपल टॉपिक स्टार्ट होता है बोर होना शुरू कर देते हो आप लोग, बट ट्रस्ट मी, फ्रॉम कूलम्स लॉ आप बोर नहीं होगे. ठीक है, क्योंकि कूलम्स लॉ मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, एकदम डिफरेंट. मेरा वे ऑफ टीचिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा डिफरेंट मिलेगा आपको. ओके, क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैंने कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा खुद भी पढ़ाई किया है, डिफरेंट तरीके से ट्राई किया है, और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा द बेस्ट मेथड. ओके, और चलो पहले इसको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चार्ज, आई एम गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. इट्स अ एटम, है ना. और तुम में से बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री जो है फेवरेट होगा, उस बच्चे को भी मज़ा आने वाला है 12th क्लास के फिजिक्स में, है ना. सो नाउ दिस वन इज द न्यूक्लियस पार्ट. And this one is the non-nucleus part. I'm writing here. Okay, non-nucleus part क्या होता है? जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन. So here we will write it's a electron. And in nucleus part we having a neutrons plus protons. Okay student, now for understanding this, here I am taking a one example. I am assuming we having a one particle here, and we know that basic things about that. The electron is the smallest unit of charge, or it's a negatively charged particle, smallest negatively charged particle. Proton is the smallest positively charged particle. I'm not talking about the quarks. Okay, that's not given in our NCERT syllabus. So whatever given in our NCERT syllabus, either you are preparing for the IIT JEE Mains, preparing for the IIT JEE Advanced, or preparing for the NEET exam. Trust me students, whatever things and whatever the topics given in NCERT books, that's only important for you. आप अपना दिमाग लगा करके, सर हमने तो इस बुक में वो पढ़ा और इस बुक में वो पढ़ा है. So we are not doing here PhD. We are preparing for the IIT JEE and NEET exam. Okay, and for our board exam. So trust me, whatever given in our NCERT book, that's more than sufficient. Okay, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मोटिवेटेड क्वेश्चंस करेंगे इन दिस लेक्चर, बट हम लोग फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ हियर non-nucleus part is containing the electrons, and we know that the electrons is negatively charged particle, and nucleus part is containing the neutron plus proton. Okay, and we know that proton is positively charged particle and neutron is नाम से पता चला है neutral particles. Okay, now I am assuming here this one is a neutral particles. It means number of electron or number of proton is equal here.
Now we having this A particle, and I'm considering another B particle. Here again number of electron and number of protons is again same. It means initially both particles are neutral. Now if this particle is giving 5 electron or x electron, जितना रहेगा उतना ही देगा, x electron to this. Okay, one most important thing students, now you can just transfer the electrons because neutrons is here in nucleus part and electrons are moving around that, so you can transfer just a electron from one body to another body. So here if this particle is giving x electron to this body, now what will happen after this shuffling? This body will get how much? M plus x electron and m proton, and here now this body have left n minus x electron or n proton. Now look at this body having less number of electron as compared to proton, and electrons is responsible for the negative charge and proton is responsible for the positive charge. So this particle having more number of positively charged particle as compared to negatively charged particle. It means we can say this one is positively charged. So if you taken electrons from any particles, it means the left particle is positively charged. Now here this particle is given x number of electron to this particle. It means here more number of electrons as compared to proton. It means more number of negatively charged particle. So what you can say, this one is the negatively charged. Okay, now students, now with respect to these things we can define the what is negatively charged particle and what is positively charged particle. What is negatively charged particle, student? Write down the definition. What is negatively charged particle? A charged particle having efficiency of electron, or what you can write, having more number of electron as compared to proton is called negatively charged particle. Note down the definition of positively charged particle. By the way, no one is going to ask you these definitions, but these are the basics you have to understand. Okay, so what is positively charged particle? The particle having deficiency of electron, और जिसके पास कम electron होगा as compared to proton, that is called the positively charged particle. Now I suppose you understand what is negatively charged particle, what is positively charged particle. Till now what we discussed already, what is charge, what is the definition of charge, what is the SI unit of charge. We are dividing charge in two parts. और आपको मैंने ये एग्जाम्पल्स लिया 11th क्लास केमिस्ट्री, आप में से बहुत बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जो कि मेरा नहीं था. हाँ सही है, और क्या, तो नहीं था तभी तो फिजिक्स पढ़ा, वरना केमिस्ट्री भी पढ़ाता है ना, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ना कभी कभी. हाँ, कैलकुलस मेनली मुझे पसंद है मैथ्स में. ओके, सो कैलकुलस इज फेवरेट पार्ट एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज फेवरेट इन फिजिक्स. ठीक है, मैं दोनों सब्जेक्ट ही पैरेलली पढ़ाता हूँ टिल जेईई एडवांस लेवल. ठीक है, और आगे जब बीएससी और एमएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ. ठीक है, उनको मैथ्स नहीं पढ़ाता. ओके, सो नाउ आई सपोज यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप लोग लिंक मत तोड़ना बच्चे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका बीच में लिंक टूट जाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसमें सारा एक पर दूसरा कॉन्सेप्ट एक पहले वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. फर्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैं लिखा क्या रहा हूं, मैं समझा देता हूं आपको ना. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. आप लोग लिख सकते हो, यू आर इन 12th क्लास. सारा लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, वीडियो लेंदी बनेगा. ओके, तो चार्ज, फर्स्ट व्हाट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट मींस यू कैन ऐड चार्ज और सब्ट्रैक्ट चार्ज यूजिंग नॉर्मल अर्थमेटिक्स. ओके, और चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है. मैग्नीट्यूड क्या होता है, कूलम. ओके, सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. नोट डाउन, फर्स्ट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड,
charge is conserved for a system. This second property is very important. Charge is conserved for a system. Now what is the meaning of this? Look at this. For understanding this charge is conserved for a system, I am taking a system and this system having 3 charge particle ABC. आप कितने भी ले सकते हो, हम लोग को समझना है, इसलिए हमने कितना लिया, 3 particle charge system. Okay, now A having charge plus 3 coulomb, B having charge plus 2 coulomb and C having charge plus minus 2 coulomb. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट प्लस 3 coulomb. ओके, अब क्या किया, मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया, चार्ज एक दूसरे में सफल हो गया, ट्रांसफर हो गया, एंड आफ्टर दैट हियर द सेम सिस्टम हैविंग A B C पार्टिकल है इसके पास A B C एंड दिस हैविंग प्लस 1 coulomb प्लस 9 coulomb और यहाँ पे है प्लस x coulomb. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. What you can do, you can use this property. Total charge is conserved for a system, so total charge is constant, so total charge कितना होगा, प्लस 3 coulomb ही होगा. और यहाँ पे कैसे आएगा, प्लस 1 प्लस 9 प्लस x इक्वल टू 3. x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आएगा, माइनस 7. Okay student, so minus 7 coulomb. So here the x value is minus 7 coulomb. The basic property students, कभी कभी बेसिक्स एग्जाम्स में आ सकता है, 1 marks क्वेश्चन है. So charge is conserved for a system. Our universe is a system. Okay, and charge in this system is conserved. आप क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हो, बट यू कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज. आप सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर कर सकते हो. एक और प्रॉपर्टी आता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिया, ऑटोमेटिक उस पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो गया, और जिसको आपने दे दिया उसके पास निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गया, है ना. सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो इफ यू वांट टू नोट डाउन चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम, एंड नोट डाउन दिस एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Now we will understand quantization of charge. Third property we are discussing, that's the क्या लिखता, third property is quantization of charge. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? एक बार हम लोग समझते हैं इसके लिए. हाँ, सिस्टम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वांटाइजेशन? इट मीन्स चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपने एक 10th क्लास में पढ़ा होगा, Q इक्वल टू N इंटू E. वट इज द मीनिंग ऑफ दिस? N इज वॉट हेयर, इंटीजर नंबर. क्या हो सकता है, प्लस 1 coulomb, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो हेयर इट्स अ इंटीजर नंबर, वी आर डिनोटिंग इट विद द I. सो Q इक्वल टू NE, इट मीन्स चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. Try to understand. Charge always exists in the integer multiple of electron. आपने कभी ऐसा नहीं लिखा होगा Q इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन कूलम, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. चार्ज कैसा होता है आपका, हो सकता है 2 coulomb, 3 coulomb, 4 coulomb, लाइक दैट. इंटीजर मल्टीपल में होगा. यू विल नेवर फाइंड चार्ज इन दिस फॉर्म. अच्छा, क्वार्क्स के बारे में सुना होगा ना, 3/2 इलेक्ट्रॉन कूलम्स, हम लोग नहीं पढ़ना है, क्योंकि दैट्स नॉट इन द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक. ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यू अंडरस्टैंड, इट मींस चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक बार बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 coulomb चार्ज. हम लोग इसको भी समझेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द
we'll discuss that question, number of electrons responsible for 1 coulomb charge. Before discussing that, the practical unit of charge. The practical unit of charge is microcoulomb. अच्छा 1 microcoulomb, 1 nanocoulomb, 1 millicoulomb. These are the practical unit of charge जो कि हम लोग लैब्स में यूज करते हैं. 1 nanocoulomb means 1 into 10 to the power minus 9 coulomb, 1 into 10 to the power minus 6 coulomb, 1 into 10 to the power minus 3 coulomb. So these are the practical units of charge, and we are using this type of charge or this amount of charge in our labs. Okay, what is the smallest unit of charge? Very important. The smallest unit of charge is electron coulomb. And what is the value of 1 electron coulomb? It's a minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. बहुत small है. And why I am telling this is smallest unit of charge? इससे छोटा smallest unit of charge होता ही नहीं है. Why? Because I told you in the property quantization of charge, the charge always exists in the form of integer multiple of electrons. Try to understand. If charge is always existing in the integer multiple of electrons, तो आप उसको तो divide कर ही नहीं सकते, है ना? So that's why the smallest unit of charge is electron coulomb. मैंने ये क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्टिव में देखा था, है ना? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19. और मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन कूलम का मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. दिस माइनस साइन इज डिनोटिंग एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग माइनस. Okay, and this is a magnitude 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay student, hope so आप सबको समझ में आ रहा होगा. Now the basics all property, because these things in 10th class, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाने की जरूरत नहीं समझता, है ना? नॉर्मली हम लोग कवर कर रहे हैं इसको. एक्चुअली दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द कूलम्स लॉ. ठीक है, वहां से हम लोग अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन है, आप लोग खुद से करना. द नंबर ऑफ, मैं अभी बोला था थोड़ी देर पहले, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बार नीट एग्जाम ने भी पूछ रखा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कूलम चार्ज. जैसे आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है 1 कूलम चार्ज के लिए. Which property you have to use? Q equal to N into E. कहाँ पढ़ा था हमने? Quantization of charge. Q equal to given here 1 coulomb. N equal to given? No, you have to find. N electrons 1 point. I'm writing magnitude 6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Question में बहुत precisely लिखा था. Number of electrons responsible. ये नहीं हो रहा था कि कितना बनाएगा, otherwise it will be minus 1 coulomb charge, है ना? यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी भी पार्टिकल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गया तो उसके पास 1 कूलम बचा. दैट्स व्हाई दे आर रिटन वेरी प्रिसाइजली. द क्वेश्चन वाज रिटन लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कूलम चार्ज. ओके स्टूडेंट, सो 1 इक्वल टू n into this one. So n equal to what? I suppose you all are expert in mathematics. ओके, यहाँ पे भी कूलम था, इधर भी कूलम था, कूलम ने कूलम को पीट दिया. आंसर क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 18. 6.25 into 10 to the power 18 आता आंसर. आई सपोज यू ऑल आर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स. आप लोग कैलकुलेट कर लोगे. बच्चे थोड़ी है यार, 10th क्लास के बच्चे को मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ. यू आर इन 12th क्लास. अभी तक पता ही नहीं चला सर, अभी अभी आपने बताया, है ना? Okay, so now students, the basic charge, what is charge, what is the properties of basic charge properties, I already discussed. Okay, so now I am going to discuss the charging method, okay, or charging of body. Charging methods. First होता है
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या मतलब है इसका? सिंपल, यहां से समझ में आ रहा है, आप लोग ने ऐसे ही फ्रिक्शन पढ़ रखा है ना। अब किसी भी दो बॉडी को अगर रब करते हो, ये देखो माउस, सॉरी रिमोट और ये डस्टर, गंदा होगा वैसे, अगर मैं इसको ऐसे रब करूं तो व्हाट विल हैपन, सम पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो टूट के दूसरे बॉडी में चले जाएगा। और आपको पता है कि दिस वन इज द ए बॉडी एंड दिस वन इज द बी बॉडी। आपने क्या ए बॉडी बी बॉडी को यूं रब किया, ऐसा रगड़ दिया। नाउ क्या हो गया इसके से कि ए बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, मैं सोचा कि एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो कहाँ चले गया, बी बॉडी। किस बॉडी से किस बॉडी में? आई एम टेकिंग अ जनरल एग्जांपल हियर where the electrons are loosely bonded, from there it will go to the another body जहां पे strong bonded होगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। आई सपोज यू ऑल आर एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री ऑल्सो, अदर देन फिजिक्स यू आर एक्सपर्ट इन अदर सब्जेक्ट्स। ओके, सो हेयर ए एंड बी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गया बी में। अब क्या हो जाएगा, बी हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके बाद हेयर यू विल गेट द बॉडी बी दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स चल गया है, हेयर यू विल फाइंड द ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो आप ऐसे घस के, चाहे वो कंडक्टर होगा या नॉन कंडक्टर, तो इन बोथ केस, किसी भी केस में अगर कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, बाय फ्रिक्शन यू कैन चार्ज द कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर बोथ। आपने पढ़ा होगा ना कि कॉम को ऐसे चलाया बचपन में और पेपर्स को ले जाकर के पास में, तो उसको वो अट्रैक्ट वगैरह कर रहा है, ये सब आई सपोज यू ऑल आर एक्सपर्ट, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ चार्जिंग बाय सेकेंड मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ कंडक्शन मीन्स एक बॉडी ए है, ऐसा ही बना रहता है बुक में, और नाउ हेयर वी हैविंग अनदर बॉडी बी एंड दिस बॉडी बी इज पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा मैंने मान लिया। और आपने क्या किया, दोनों बॉडी को एक दूसरे से टच किया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो भी बी बॉडी पे चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना पाएगा अपने सारे सरफेस एरिया पे, और उसके चलते क्या हो जाएगा, इधर भी सारे पे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है एक जिस बॉडी पर था उसमें कम हो जाएगा और सब पे ही चार्ज आ जाएगा। सो थ्रू दिस प्रोसेस आल्सो यू विल गेट लाइक ए इज गेटिंग हेयर पॉजिटिवली चार्ज, और बी तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है ही। सो बाय कंडक्शन, इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, कॉन्टैक्ट में लाना पड़ रहा है बॉडी को, और कॉन्टैक्ट में आने के बाद दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जा रहा है। ओके, नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, बोर्ड्स में आते हैं क्वेश्चंस यहां से। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, देखो एक हमारा फिर से एक बॉडी है ए, और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। आपने एक रॉड को लाया इस बॉडी के पास, रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो कि रह गया स्टूडेंट, दैट प्रॉपर्टी इज सेम चार्ज चार्ज। So like charge, this is a like charge, positive positive, like charge repel each other। by the way मैं कूलम्स लॉ जब पढ़ाऊंगा आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाता ही, अभी समझ लेते हैं। और alike charge, one is positive negative, it will attract each other। अगर दो निगेटिव भी ले लेते हो आप, then also it will repel each other। so what is this property, charge property,
like charge repel each other and alike charge opposite charge is attract each other. याद रखना है, बचपन में पढ़ रखे हैं हम लोग ने ये, है ना. So here look at this one is a positively charged rod and this one is a neutral body and this body having electron and proton. अब क्या होगा, ये अपने तरफ खींच लेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को. इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ और इधर बच क्या जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. बहुत अच्छे. अब क्या किया आपने, ये बॉडी में इधर आ गया आपका नेगेटिवली चार्ज and here we having a positively charge. Now what you will do, you will connect this with the धरती माता, ground. Now धरती माता, ground, earth is behaving like our mother also. आपको जब भी पैसे की जरूरत होगी वो पैसे दे देंगे और जब पैसे की जरूरत नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो ले लेंगे. जैसे when I was a student, मम्मी लोग पैसा देती थी पॉकेट मनी, पापा कुछ दिया, मम्मी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया. Now I am earning, तो मम्मी को लगता है ऐसा कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो वो ले लेती है. सिमिलरली है दिस पार्ट हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट्स को आपने धरती माता से कनेक्ट कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू दिस ग्राउंड वायर लाइक दिस और आपके पास जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. वाइस वर्सा आल्सो यू कैन डू. अच्छा, अगर आपने क्या किया, नहीं भाई मैं तो इसको दिस वन इज द प्लस. अच्छा, ये दोनों पार्ट्स किसी भी बुक में नहीं समझा रखा है ना. इफ यू आर कनेक्टिंग दिस साइड, मैं बोला ना, मैं आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर इन माई ऑन वे. आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला इधर. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ हियर, सन इज रिक्वायर्ड, मनी फ्रॉम मॉम इज व्हाट, धरती माता, ग्राउंड. ओके, सो व्हाट विल हैपन, इट विल सप्लाई. अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा, यूं. उस समय कैसा था, यूं. अब क्या हुआ, सप्लाई करके धरती माता विल मेक दिस साइड न्यूट्रल और थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट किया, क्या मिल गया भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है कि नहीं. ये सारा ए ही है. नाउ यू अंडरस्टैंड द कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस. बेसिक चीजें है, आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ के रखा होगा. चार्जिंग बाय थर्मोआयनिक इमिशन. अब ये थर्मोआयनिक इमिशन क्या है, किसी भी बॉडी को, जैसे मैं ले ही लेता हूं इधर, नेक्स्ट चार्जिंग बाय थर्मोआयनिक इमिशन. व्हाट इज दिस, लुक एट दिस, वी हैविंग अ बॉडी और इसको आपने कैंडल कैसा बनाए भाई, चलो गैस स्टोव है सर, है ना. इससे आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो पार्टिकल्स है, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं, या पार्टिकल्स क्या करने लगेगा, जिग जैग मोशन, फास्ट, बिकॉज इट विल गेट अ काइनेटिक एनर्जी. अब ये फास्ट जब इधर उधर जिग जैग मोशन करने लगेगा, उसी में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा. जब ये इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 2-3 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गया, इफ यू विल हीट and because of, if you will provide the heat and because of heat it will start moving very fastly, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, उसके चलते वो क्या क्या बाउंड्री को स्किप कर जाएगा. ठीक है, जब बाउंड्री लूज कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, तो क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स चलेगा. नाउ द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज. भैया जब भी जिस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स भाग जाता है और कोई ले लेता है तो बचा खुचा बॉडी जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज. बहुत सिंपल है. Okay, now student, next photoelectric effect. Using this one was the third, this one is the fourth, fifth. Charging by photoelectric effects. आप लोग लिख सकते हो charging by photoelectric effects. हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में. उसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ. This one is the metal surface. If light ray will fall on that metal surface, what will happen? Electrons will eject. मान लो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गया वहां से, है ना. We'll discuss these things in very detail. आपने ये पढ़ रखा है इन थर्मोडायनेमिक्स, और ये वाला जो पार्ट्स है मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे. दैट्स द लास्ट यूनिट ऑफ आवर 12th क्लास. डोंट वरी, देयर विल डिस्कस इन वेरी डिटेल. अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ. इफ लाइट रे विल फॉल ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स यूज टू इजेक्ट फ्रॉम देयर. क्यों, कैसे, कितना, सब डिस्कस करेंगे बाद में. सो नाउ हियर इट विल इजेक्ट. इफ इट विल इजेक्ट, व्हाट विल हैपन, अगेन लेफ्ट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज. So I suppose you understand. मैं तो समझ गया था पहले in 2011-12, है ना.
तो आप लोग को भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत ही समझना, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, बट दिस इज द मोटिवेटिंग पार्ट फॉर यू, है ना। समझ में आ रहा है कि भाई जिससे हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना है, वो जो है सो हमारे समझ में आ गया। सो दिस इज द बेसिक, और आई ऑलरेडी डिस्कस द चार्ज। व्हाट आई डिस्कस टुडे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वी आर डिवाइडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन टू पार्ट्स. One is electrostatics, second one is electrodynamics. What is electrostatics? It deals with the study of charge at rest. What is electrodynamics? It deals with the study of charge in motion. Now, for understanding this electrostatics or electrodynamics from tomorrow onwards or in next lecture I am going to start the electrostatics parts. So what here we are dealing with the charge. फर्स्ट क्या है? चार्ज। तो हमने क्या किया आज? चार्ज के बारे में थोड़ा सा देखा। व्हाट इज चार्ज? इट्स अ प्रॉपर्टी, इज इट और नॉट? इट्स अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर्स ड्यू टू विच दैट मैटर इज एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। वेरी सिंपल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट? कूलम। कहां से पढ़ा था? फर्स्ट टाइम 10th क्लास में। ओके उसके बाद हमने क्या पढ़ा? देयर इज टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? द चार्ज हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल? द चार्ज हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ लिया? मान लो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। लाइक चार्ज, दो पॉजिटिव है, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चौक ले लेते हैं यार। पॉजिटिव, इट विल रिपेल इच अदर। दो निगेटिव है, अगेन इट विल रिपेल इच अदर। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इट विल अट्रैक्ट इच अदर। कुछ टीचर्स कहानी सुनाते हैं इसके पीछे, लड़का है लड़की है अट्रैक्ट करेगा, लड़की है रिपेल करेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि आजकल रूल्स चेंज हो गया है, पता नहीं किसको कौन अट्रैक्ट करे किसको कौन रिपेल करे। लीव सॉरी, समझ में आएगा, तुम कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैं ऐसा बोल दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम। इट मीन्स व्हाट? हमारा जो यूनिवर्स है उसमें चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, है ना तो उसको डिस्ट्रॉय होगा, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट फॉर्म। इट मीन्स द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन कूलम। और यूनिट क्या होता है? सॉरी, वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ देन आफ्टर व्हाट वी डिस्कस, द चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, और हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना काफी है, जैसे इंट्रो पार्ट। एंड स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू अपलोड एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियोस। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्त के साथ जो पढ़ना हो। और इस सीरीज में मैं पूरे 12th क्लास डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो बेल आइकन दबा दो, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ गुड टाइम, बाय।